Good morning, dear student. Now let us start our next exercise 8.5. In this exercise, you will learn proper fraction, improper fraction, and mixed fraction. So, what is it? Proper fraction. Fraction, all are they are aware this word fraction means a whole number of part. Okay, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है. So, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से ही प्रॉपर की डेफिनेशन बनती है. कैसे? If denominator is greater from numerator. Okay, numerator is called proper fraction. I am writing in short form PF. Okay, now it means denominator. So what is a denominator? A division line के ऊपर वाली line को numerator कहते हैं and below the line denominator. Denominator बड़ा होना चाहिए. So you can create example so many. How can write first denominator? If you writing 7, तो 7 से छोटा number लिखना है 6. Here if you writing here 4 से छोटा number 3. So these are the proper fraction example, whereas you can see denominator is greater from numerator. Just opposite of improper fraction, what the definition it is? So the definition of improper fraction, if numerator is greater than denominator is called a improper fraction. Numerator greater होना चाहिए. So write first numerator 1 digit 8. So below definitely it will smaller for numerator. 7 आएगा. 9 लिखा तो 9 से छोटा 6. 5 लिखा 5 से छोटा नंबर आना चाहिए 3. So it means these are the example of improper fraction. Understand now? Now next definition, mixed. मिक्स्ड मीन्स यू आर ईटिंग ना मिक्स्ड वेजिटेबल. वैसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन भी क्या होता है? ये मिक्स्ड है, 2 नंबर से मिक्स है. कैसे? एक होल नंबर से और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से. होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो क्या कहलाता है? मिक्स नंबर. कैसे? यू राइट हियर द होल नंबर 2 एंड द proper fraction definition means that denominator should be greater. So write the denominator first, 8 and 1. So you can create so many example yourself. Okay, so understand what is a mixed fraction. This is a mixed fraction, a combination of whole number, and the proper fraction is called a mixed fraction. So here's the example 2 1/8. Now first you have to learn मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है. सपोज 2 1/8 इट इज गिवन. ओके, सो यू आर चेंजिंग मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है. हाउ इज इट? सी, स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज डिनोमिनेटर 1 डिजिट. 8 सबसे पहले 2 के पास जाएगा और क्या करेगा? मल्टीप्लाई. Okay, then after whatever the answer is coming, then we have to add with this numerator 1 digit. क्या करेंगे? ऐड करेंगे. So you can write here the multiply और प्लस का सिंबल सेम लगता है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे अपन? m. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? a. m मतलब मल्टीप्लाई, a मीन्स एडिशन. हाउ कैन यू डू? सी द प्रोसेस. मैंने क्या बोला? स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज डिनोमिनेटर 1 डिजिट 8 लिखा, देन आफ्टर मल्टीप्लाई with the 2. Okay, then after add with the numerator 1 digit and denominator it should be same. जो यहाँ पे था वही denominator आएगा. Now solve it. सबसे पहले multiply को solve करेंगे. 8 2 जा 16. 16 plus 1/8 it means 17/8. So this is an improper fraction or not, where the numerator is greater from denominator. Understand now? How can you do this type of the questions? Okay. अच्छा, वन मोर थिंग, इफ इट इज गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्वेश्चन, हियर यू हैव टू लर्न मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया. ओके, नाउ यू विल लर्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मेक अ मिक्स फ्रैक्शन. हाउ इज इट पॉसिबल? द क्वेश्चन इज गिवन 23/5. okay, 23/5, it means you have to divide in 23 this 5. You will get 4 times divide and the remaining is 3. Okay, now how can you write it? This is the quotient, it means answer. This is the remainder and this is the divisor. Remainder, quotient, remainder and divisor. Improper fraction को mixed fraction में रखने के लिए here is a one formula, that is QR/D. Okay, Q means quotient, R means remainder, D means divisor. So first we have to write the quotient. Quotient क्या है? 4. क्यू आर डी के अकॉर्डिंग अपन अरेंज करेंगे अपने डिजिट्स को. सेम एज द क्यू की जगह 4 लिखा, आर की जगह 3
and D is your 5. So that answer in mixed fraction 23/5, 4 3/5. This is the process. पहले 4 start from हमेशा quotient, फिर उसके बाद में 3 के बाद में किसके पास जाएंगे, 5 के पास. Understand now how can you do this type of the question also? Now let us look at exercise question. Fill in the blanks. Okay, how many parts, shaded part are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 shaded part are there. In a one circle, how many part are there? 2. So out of 2 in a one part में अपन नीचे 1 जितने part होते हैं वो लिखते हैं. Okay, and the shaded part, count it and write it. Is it clear? Same as here also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. In a one part, how many total part are there? 4. Out of 4. Okay, out of 4, 9 part are shaded. Same as here. 1 to 11 part are shaded. Out in a one whole, how many part are there? 5. Understand now how can you do this type of the questions? Now then after you can see ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में. हाउ इज इट पॉसिबल? 5 है, 5 में डिवाइड लगाए 2 का. हाउ मेनी टाइम इट्स गॉन? 2 टाइम. 4 इट इज कमिंग, 1 इज रिमाइंडर. सो राइट फर्स्ट QRD, QR and D. So write 2, then after 1 upon 2. ओके, इसमें भी ऐसे करेंगे. 9/4. 9 में डिवाइड लगाया 4 का, 2 टाइम गया 8, 1 इज रिमाइंडर. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द 2, देन 1, देन 4. नेक्स्ट वन 11/5. 11 में डिवाइड लगाया 5 का, 5 टू जा 10, 1 इज रिमाइंडर. तो राइट फर्स्ट 2, देन 1/5. So understand how to do this question number 1. Now question number 2. Circle the improper fraction. Circle the improper definition. It is coming in mind or not? Coming ना, क्या होती है improper fraction की definition? The numerator should be greater. Okay, numerator digit कोई देखना है केवल तुम्हें, और किससे greater होनी चाहिए? denominator से. ये greater है? नहीं है. 42 is also not greater. 61 it's greater from 36. This one is also not, and this one is also not. Sorry, ये भी नहीं है. 64 बड़ा आना चाहिए था. यहाँ पे भी अपन को circle only one digit. 13/20, 17/15, 18, और here 21. So this one is 19, 4, 23. This one और नहीं है. 5, 7, 9, 2, 6. 6/5. Question number 3. Convert into mixed fraction. I already told you how can you do this type of the question. mixed fraction में change करना है. 32 में डिवाइड लगाएंगे किसका? 7 का. हाउ मेनी टाइम इट्स गॉन? 4 टाइम. 28 इट इज रिमाइंडर. 12 में से 8 गया 4. नाउ राइट इट लाइक दैट. सबसे पहले क्या लिखना है? ये वाला 4, देन 4/7. So do this type of the question itself. Here I am explain already. As a practice, do all questions of third one. Improper fraction. फर्स्ट क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. सेकंड क्या करते हैं? एडिशन. सो क्या करना है? 9 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, देन ऐड करना है विद द 6, और डिनोमिनेटर ऐसे ही रहती है. दिस इज द प्रोसेस. 9 3 जा 27, 27 + 6/9. 27 में 6 ऐड किया कितना हो जाएगा? 33/9. सो दैट आंसर इज 33/9. क्वेश्चन नंबर 5. रिड्यूस द फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म. लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है. कैसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे? सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द 81 के फैक्टर्स निकालेंगे अपन. 81 के फैक्टर ये 1 की टेबल में भी आता है. हाउ मेनी टाइम? 81 टाइम. इन 2 टेबल? नो. 3 टेबल इट इज कमिंग. डिवाइड इट, देन आफ्टर यू गेट द आंसर कि कितनी बार आता है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इज रिमेनिंग, 1 इज इट इज कमिंग. इट मीन्स 27 टाइम. ओके, 3 की टेबल में 27 टाइम आता है. 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आता, 6 की टेबल में भी नहीं आता है, ये 7 की टेबल में. लेट्स चेक, देन आफ्टर फाइंड आउट. ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से डिवाइड लगा के देखना है कि आता है या नहीं आता. ओके, ऑड नंबर यू नो इट वेरी वेल. 3 5 7 9. 7 की टेबल में लगाए डिवाइड 1 टाइम, 7 11 इट इज़ कमिंग. तो ये 7 से भी नहीं डिविजिबल हो रहा. 8 से नहीं होगा क्योंकि
8 इवन और ये ऑड है 9 से येस हाउ मेनी टाइम 9 टाइम. सो यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट होने लगे. सो द फैक्टर ऑफ दिस वन 1 3 9 27 एंड 81. सेम एज द प्रोसेस फॉर 126 के लिए भी करेंगे. इवन नंबर है तो डेफिनेटली इवन नंबर से तो डिविजिबल होगा. 1 की टेबल में 126 टाइम, 2 की टेबल में दिस नंबर इज गॉन 63 टाइम. 2 6 12, 2 3 6 डिवाइड ऐसे लगाते हैं. हियर आई डिड द शॉर्ट वे, शॉर्ट मेथड से करा था मैंने, बट तुम्हें नहीं करना है बेटा, पूरी तरीके से डिवाइड लगाना है. ओके अंडरस्टैंड नाउ. फिर उसके बाद में ये 3 से भी डिविजिबल है. 3 की टेबल में 12 इट इज़ कमिंग 4 टाइम एंड 6 इज़ कमिंग 2 टाइम. ओके इन 4 टेबल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से यस 6 से डिविजिबल है. हाउ मेनी टाइम्स, क्योंकि 6 की टेबल में 12 और 6 दोनों आते हैं. 12 इज़ कमिंग 2 टाइम एंड 6 इज़ कमिंग 1 टाइम. 7 से नहीं, 8 से नहीं डिविजिबल है क्योंकि 4 से नहीं है, तो 8 से भी नहीं होगा. 9 से लेट्स चेक कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है. 9 में 9 सॉरी 1 टाइम 9 हियर राइट. 12 में से 9 गया 3 36 इट मीन्स 14 टाइम. 9 की टेबल में आता है ये 14 टाइम. ओके देन 10 11 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं हो रहा, 14 से होगा, 9 टाइम होगा. सो रिपीटेशन स्टार्टेड. 14 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 9 लिखेंगे तो रिपीटेशन स्टार्ट होने लग गया. सो द फैक्टर ऑफ दिस वन 1 2 3 6 9 14 21 42 63 126. Okay, now find the biggest one common factor. Biggest one 1 3, पहले सर्कल करो. 1 है, ये 3 है, 3 भी कॉमन है और 9 भी कॉमन है. और कोई कॉमन आ रहा है नंबर? नहीं आ रहा. सो द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या हो जाएगा इनका 9. सो दीज आर द नंबर डिविजिबल बाय 9. हाउ कैन यू डू? 81 में 126 में डिवाइड लगाओगे आप 9 का. ओके और ऑलरेडी यू डिवाइडेड बाय 9 एंड हाउ मेनी टाइम इट इज़ कमिंग 14 टाइम और इसमें 9 टाइम. सो द लोएस्ट टर्म ऑफ 9/14. सो दिस इज द प्रोसेस टू डू दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. पहले क्या निकालना है? फर्स्ट स्टेप रिमेंबर ऑलवेज यू हैव टू फाइंड द HCF. एंड दीज टाइप ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व फर्स्ट इन अ रफ कॉपी, देन आफ्टर राइट इन फेयर कॉपी. रफ कॉपी में ऐसे सॉल्व करोगे, मेक ए रफ कॉलम. इन रफ कॉपी में भी अच्छी तरीके से काम करना है. देन आफ्टर फाइंडिंग फर्स्ट HCF में भी क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है. देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड लगाना है. देन आफ्टर विल गेट द लोएस्ट. अंडरस्टैंड नाउ? So these are the as a practice question. Here I am explain only the one question. If you are getting a problem, then I will explain in a live class. Okay beta. Thank you. Bye bye.